Hello friends, welcome to PLA Legality. Today I am going to discuss with you a very important topic, that is res judicata. So let's start. Res judicata, it is basically means, it is a Latin term which means thing already decided. Thing already decided. Its provisions are contained under section 11 of CPC. So basically it is the plea taken by a party to the suit. So party to the suit may be the plaintiff or the defendant. That a particular suit or the issue arose in that suit is already decided by the competent court. So when such plea is taken, so we say the party has taken the plea of res judicata, that the particular suit or issue is barred by res judicata. Section 11 CPC lays down the various essentials for the application of this rule. So let's analyze these essentials. So the first essential is there must be two suits. One is the former suit, which is the previously decided suit as provided in explanation 1 of section 11, and one is the subsequent suit, the present suit, जिसको बार करने के लिए रेस जुडिकाटा की प्ली रेज की गई है. So it can be like for example that A filed a particular suit against B, that he has become the owner of this property because of this will in his favor, but failed to prove the will. He failed to prove the will, and accordingly the suit of A is dismissed. So subsequently he again filed a suit against B, claiming that this will is in my favor, and accordingly now I have the evidence to prove this will. So B says this suit is now barred by res judicata. So in this case B is saying that the issue raised by him, that the suit filed by A, that he is the owner of this property on the basis of will, is already decided by the previous court in the previous suit. So therefore this particular subsequent suit is barred by res judicata. Another thing could be that there may be one suit, but the same issue arose at two different stages of the same suit. For example, let's say एक O था, O is the owner of the property. O ने क्या किया, एक PP, तो PP is previous purchaser. O is owner. So just for the ease of understanding this question, we are naming so कि O ने एक previous purchaser के साथ एक agreement to sell किया हुआ था. तो मतलब the plea of this person is कि ये previous purchaser है और इसी property का agreement to sell इसने एक SP, that is subsequent purchaser के साथ कर रखा है. तो बेसिकली क्या हुआ, ओनर ने क्या किया, एक ही प्रॉपर्टी के दो एग्रीमेंट्स कर लिए, एक पीपी के साथ कर लिया, एक एसपी के साथ कर लिया. अब दोनों ने ही इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए सेपरेट सूट फाइल कर दिए. पीपी ने एक सेपरेट सूट फाइल किया वर्सेस ओ ओनर के अगेंस्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाए कि ये एग्रीमेंट है मेरी फेवर में ओ ने किया है तो इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाए. और सेकंड सूट फाइल किया, सब्सिक्वेंट परचेजर ने भी ओ के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तो ये दो सूट फाइल हो गए ओनर के अगेंस्ट, क्योंकि इसने क्या किया, दोनों के साथ ही एक ही प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एग्रीमेंट टू सेल डिफरेंटली कर लिए, दोनों को इसका बारे में नहीं पता था. नाउ पीपी को जब पता लगा कि ओ ने पहले भी कि ओनर ने एसपी के साथ भी एक एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है और उसने भी एक सूट फाइल कर रखा है, तो पीपी ने क्या किया, पीपी ने इस केस में, इस सब्सिक्वेंट सूट में पीपी ने क्या किया, पीपी ने एक एप्लीकेशन फाइल की, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ सीपीसी. इसने एक एप्लीकेशन फाइल की कि पीपी क्या है, पीपी नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है इन दिस केस, तो इसको भी इस केस में पार्टी बनाया जाए.
सो मीनिंग देयर बाय इस एप्लीकेशन में इशू क्या राइज हुआ कि वेदर पीपी इज अ पार्टी और नॉट. सो इन दिस केस इस एप्लीकेशन के साथ एक इशू राइज हो गया वेदर पीपी इज अ नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी in the suit filed by SP versus O. कि इस केस में पीपी नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है कि नहीं, ये इशू राइज होगा. इस एप्लीकेशन को अपोज किया एसपी ने कि ये इस केस में कोई नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी नहीं है, इसका अलग एग्रीमेंट है, इसका इस एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है. And accordingly the issue is decided against and the application is dismissed. ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई. तो इस एप्लीकेशन डिसमिस होने का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट ने डिसाइड कर दिया इशू कि जो पीपी है वो एसपी वर्सेस ओ केस में नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी नहीं है. सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इसके बाद जो पीपी का केस था वर्सेस ओ फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये डिक्री हो गया, ये डिक्री हो गया इन फेवर ऑफ प्रीवियस परचेजर. अब जब एसपी को इस बात का पता चला कि प्रीवियस परचेजर की फेवर में ये सूट ऑलरेडी डिक्री हो चुका है, तो इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली एसपी के सूट पे आएगा ही आएगा. तो एसपी ने क्या किया, अब एसपी ने एक एप्लीकेशन फाइल की टू इम्प्लीड प्रीवियस परचेजर एज अ पार्टी टू द सूट. तो कौन सी प्रोविजन में फाइल होगी, दैट इज ऑर्डर 1 रूल 10 में एक एप्लीकेशन अब एसपी ने फाइल कर दी कि पीपी को इस केस में पार्टी बनाया जाए. रीजन बीइंग कि पीपी क्या है, नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी है. तो पीपी ने क्या किया, पीपी ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि ये तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि मैं इसके केस में नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी नहीं हूँ. सो ही सेज कि ये जो इशू है वेदर पीपी इज अ नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय दिस कोर्ट एट प्रीवियस स्टेज. तो पहली स्टेज पे पहले ही इस केस के इस इशू को डिसाइड कर दिया गया है जब मैंने ये एप्लीकेशन फाइल की थी. सो एक ही सूट में दो डिफरेंट स्टेजेस पे सेम इशू अराइज हुआ एंड विच इज ऑल्सो बार्ड बाय रेस जुडिकेटा. ऑलराइट, देन द सेकेंड एसेंशियल इज दैट द मैट्रिन इशू must be directly and substantially in issue. तो प्लीज बियर विद दिस थिंग, मैं थोड़ा सा ब्रीफ वर्ड यूज कर रहा हूं. तो D/S इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू एंड नॉट कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू. मतलब कि अगर वो इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, अगर वो कोलेटरली एंड इंसिडेंटली है तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा. अब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है या कोलेटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है, ये पता कैसे चलता है, हाउ वी डिसाइड दिस थिंग. बेसिकली डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए वी मस्ट रीड एक्सप्लेनेशन 3 एंड एक्सप्लेनेशन 4. एक्सप्लेनेशन 3 टॉक्स अबाउट मैटर एक्चुअली इन इशू एंड एक्सप्लेनेशन 4 टॉक्स अबाउट मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू. अब इसका मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है कि जब भी एक पार्टी किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एक सूट फाइल करती है तो वो एक पर्टिकुलर क्लेम अपना असर्ट करती है कि दिस इज पर्टिकुलर राइट और अ क्लेम इन माय फेवर एंड द ऑपोजिट पार्टी इज डिनाइंग सच राइट और इज नॉट गिविंग मी सच राइट, नॉट लेटिंग मी एक्सरसाइज दिस राइट. सो सच काइंड ऑफ सूट्स आर ऑलरेडी ऑलवेज फाइल्ड. सो इस केस में बेसिकली क्या है, इस क्लेम या राइट को डिसाइड करने के लिए व्हाट इज इन इशू, क्या इशू में है, किस प्ली को डिसाइड करना ज़रूरी है अगर हमने इसका ये क्लेम या राइट डिसाइड करना है. सो दैट बिकम्स मैटर इन इशू, वो मैटर इन इशू बन जाता है. जैसे कि अगर कोई पर्सन कहे कि ही इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज़ द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये उसका क्लेम है कि वो एक ओनर है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का. तो इस क्लेम या राइट को असर्ट करने के लिए किस बेसिस पे ही कैन क्लेम, ही कैन से दिस प्रॉपर्टी इज परचेज्ड व्हाइल सेल डीड सो एंड सो. तो ये जो सेल डीड है ये इस राइट का बेसिस बन गई. तो मतलब क्या हुआ कि अगर ए सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट
कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, डिक्लेयर मी द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी बिकॉज आई हैव परचेज्ड दिस प्रॉपर्टी वाइट सेल डीड नंबर सो एंड सो विच इज़ अ रजिस्टर्ड सेल डीड। बी कह रहा है कि ये जो सेल डीड है वो फॉर्ज्ड है, ये ट्रू नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो इस केस में जो सेल डीड है वो क्या बन गई, मैटर इन इशू। और इस सेल डीड की एग्जिस्टेंस जो है, इट इज़ नेसेसरी टू डिसाइड द राइट्स बिटवीन द पार्टीज वेदर ए इज द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट। सो दिस सेल डीड इज directly and substantially in issue in order to decide the rights between the parties. So matter in issue means upon which you are claiming a particular right. So इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पर्सन कह रहा है कि वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, he can claim it on the basis of sale deed, he can claim it on the basis of gift deed in his favor, he can claim it on the basis of will in his favor, or he can claim it on the basis that he is a sole legal heir. So there are various claims, there are various grounds of attack available to him to prove that he is the owner of this property. अब जितने grounds of attack उसको particular right को claim करने के लिए at the time of filing of suit available है, उसको वो सारे के सारे grounds एक ही सूट में लेने पड़ेंगे. So at that time if he do not take all those claims, जैसे कि एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने एक सूट फाइल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ विल कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ विल के बेसिस पे, ये सूट इसका डिसमिस हो गया. सब्सिक्वेंटली ही फाइल्ड अ सूट ऑन द बेसिस कि मैं इस प्रॉपर्टी का सोल लीगल एयर हूँ, कि अगर विल भी नहीं है तो भी मैं सोल लीगल एयर हूँ. तो कोर्ट सेज, लॉ सेज कि सोल लीगल एयर वाला जो आपके पास ये बेसिस है, ये तो आपके पास उस टाइम पे भी अवेलेबल था जब आपने विल के बेसिस पे सूट फाइल किया था, तो क्यों नहीं आपने इसी में ये ग्राउंड ऑफ अटैक लिया. सो दिस इज व्हाट वी से कि दिस सच सूट इज बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. So he might and ought to have raised all the grounds of attack or defense in one suit. He cannot subsequently file a suit which is available to him at that particular time. और अगर सिंपल और इजी एग्जांपल में हम देखें, ठीक है जी, एक और सिंपल और इजी एग्जांपल में देखें. सपोज करो क्या हुआ, एक हस्बैंड था, इसको वाइफ ने क्या किया, एक रात को जब ये घर पे आया तो वाइफ ने इसको बीटिंग्स दी, बहुत पीटा, और फिर इसको छोड़ के चली गई और वापस नहीं आई. हस्बैंड ने क्या किया, वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन. ही कुड नॉट प्रूव द डिजर्शन एंड अल्टीमेटली सूट डिसमिस हो गई. दिस पिटीशन इज डिसमिस्ड. तो डिवोर्स पिटीशन इसकी डिसमिस हो गई. फिर इसने क्या किया कि जब ये मुझे छोड़ के गई थी उस टाइम पे मुझे मारपीट के भी गई थी, तो मतलब क्रुएल्टी भी की है, तो इसने फिर से डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी डब्ल्यू के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी कि जब ये छोड़ के गई थी तो पीट के भी गई थी. नाउ ये जो क्रुएल्टी है, ये ग्राउंड ऑफ अटैक इसको इसी केस में अवेलेबल था, इसने यहाँ पे रेज क्यों नहीं किया. सो दिस पर्टिकुलर डिवोर्स पिटीशन विल बी बार्ड बाय कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. नाउ अगर कोलिटरली और इंसिडेंटली कब होगा, सपोज करो एक पर्टिकुलर ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, दिस प्रॉपर्टी एक्स का मालिक हूँ, ऑन द ग्राउंड कि मेरी फेवर में ये विल है, मेरी फेवर में ये विल है, जो इसका प्रीवियस ओनर जेड था उसने मेरी फेवर में ये विल की है, और ये विल मेरी फेवर में इसलिए की है क्योंकि मैं उसका अडॉप्टेड सन हूँ, मैं उसका अडॉप्टेड सन हूँ. तो इसने दो प्लीज ली कि विल मेरी फेवर में है और मैं इसका अडॉप्टेड सन हूँ. नाउ ए जो है, ही कुड नॉट प्रूव दैट ही इज जेड्स अडॉप्टेड सन, बट ही प्रूव्ड दैट विल इज जेन्युइन. इस केस में जेन्युइनिटी ऑफ विल अगर प्रूव होगी तो ए विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. मतलब वो अडॉप्टेड सन है या नहीं है ये मैटर नहीं करता इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट बिटवीन द पार्टी. सो देयरफॉर जो इश्यू ऑफ अडॉप्टेड सन है ये सिर्फ और सिर्फ कोलिटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है. दैट इज, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिसाइड द राइट्स बिटवीन द पार्टी. व्हाट वाज नेसेसरी टू डिसाइड द राइट्स बिटवीन द पार्टीज, द एग्जिस्टेंस ऑफ द विल, द एग्जिस्टेंस ऑफ द विल. ठीक है जी. तो ये हो गया मैटर इन इशू विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. देन थर्ड एसेंशियल इज that it must be between the same parties or under whom they or any of them claim. So between मतलब क्या है कि पार्टीज किसी भी पोजीशन में हो सकती हैं. पार्टीज में भी को प्लेंटिव्स, पार्टीज में भी को डिफेंडेंट्स, parties may be in the position of plaintiff and defendant.
ये मैटर नहीं करता कि पार्टीज की पोजीशन क्या है, मैटर क्या करता है कि जो इशू डिसाइड हुआ है वो इनके बिटवीन डिसाइड हुआ होना चाहिए। तो हो सकता है कि पार्टीज दोनों ही डिफेंडेंट्स हैं, लेकिन जो इशू अराइज हुआ वो इशू इन को डिफेंडेंट्स के बीच में डिसाइड हुआ। सो इन दिस केस वी से द रेस जुडिकाटा विल अप्लाई even if they were co-defendants. Then between the same parties also include the representatives, that is explanation 6. तो अगर एक सूट फाइल हुआ है इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो जिनको भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी क्या है, विल बी डीम टू बी अ पार्टीज टू द सूट, और उन पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। देन दे और एनी ऑफ देम क्लेम, इस दे और एनी ऑफ देम को क्लेम को समझने के लिए यू कैन read it with section 52 of transfer of property act, that is doctrine of lis pendens। तो इसका देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर सपोज करो एक ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट फॉर पोजेशन, कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और इंटाइटल टू पोजेशन हूँ, बी इसकी इलीगल पोजेशन में है। अब बी ने क्या किया, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस सूट ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी, पोजेशन जो है सी को ट्रांसफर कर दी। ए ऑब्टेन्ड द डिक्री अगेंस्ट बी, ए ने क्या किया, डिक्री बी के अगेंस्ट ले ली। नाउ दिस डिक्री विल बी बाइंडिंग अपॉन सी एज वेल। तो लिस पेंडेंस का प्रिंसिपल क्या है कि अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अगर कोई ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर के जो राइट्स हैं दे विल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द लिटिगेशन। और इसी प्रिंसिपल को अगर एक्सटेंड करें कि अगर सब्सिक्वेंटली सी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि ए ने जो डिक्री ऑब्टेन किया वो बी के अगेंस्ट किया, मेरे अगेंस्ट नहीं कि नाउ आई एम इन द पोजीशन, तो ये जो सी का सूट है इट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, रीजन बीइंग ही इज क्लेमिंग अंडर बी ओनली, जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी ये सूट डिसाइड हो चुका है। सो दिस इज व्हेन द पार्टी इज क्लेमिंग अंडर द प्रीवियस पार्टी टू द सूट, देन दे मस्ट बी क्लेमिंग अंडर द सेम टाइटल। सेम टाइटल का मतलब क्या है, सेम टाइटल का मतलब होता है सेम कैपेसिटी। सेम कैपेसिटी मतलब कि हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में डिफरेंट कैपेसिटीज में एक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, तो मैंने अपने स्टूडेंट से जो फीस लेनी है दैट इज इन द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। अगर मैं कहूँ आई एम अ लॉयर, तो मेरी जो लॉयर और क्लाइंट की जो फीस है दैट इज डिफरेंट। अगर मेरा कोई पर्टिकुलर पर्सन स्टूडेंट भी है और क्लाइंट भी है, तो इन द कैपेसिटी ऑफ लॉयर मेरा डिफरेंट क्लेम है, इन द कैपेसिटी ऑफ टीचर मेरा डिफरेंट क्लेम है। तो लॉयर और टीचर दे आर टू डिफरेंट कैपेसिटीज एंड इन दिस वे आई कैन फाइल टू डिफरेंट सूट। So two different title give rise to two different cause of action and you can file a separate suit. Then it must be decided by the competent court. तो जिस कोर्ट ने प्रीवियसली ये सूट डिसाइड किया है वो कोर्ट उस केस को उस टाइम पे कॉम्पिटेंट होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए। ठीक है जी, कि अगर वो कोर्ट उस केस को डिसाइड नहीं कर सकती, तो हम क्या कहते हैं कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है। और ये कॉम्पिटेंट कोर्ट जो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड करती है। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट्स कैसे, जैसे कि देखो रेंट कोर्ट्स हैं, जो रेंट कोर्ट्स हैं दे कैन डिसाइड द इशू ऑफ फेयर रेंट बिटवीन द पार्टीज और डिसाइड द इशू ऑफ एविक्शन बिटवीन द पार्टीज। वो इंजंक्शन के रिलीफ्स नहीं ग्रांट कर सकती, वो डैमेजेस नहीं ग्रांट कर सकती। तो जो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है उनकी डिसाइड करने की विद रिगार्ड टू एविक्शन एंड फेयर रेंट, वो क्या है, दे विल बी बाइंडिंग एंड दे विल बी कॉम्पिटेंट कोर्ट टू इन ऑर्डर टू डिसाइड दोज इशूज ओनली। देन इट मस्ट बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट है उसने जो प्रीवियसली सूट डिसाइड किया वो ऑन मेरिट्स डिसाइड किया, ऑन मेरिट्स दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड किया। तो जो एक्स पार्टी डिक्री है वो भी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड मानी जाती है। रीजन मीन कि एक्स पार्टी डिक्री में जो पार्टी है ही इज गिवन द ऑप्शन टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, बट बाय नॉट अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट उसने ऑप्ट किया कि मैंने इसमें कोई भी डिफेंस नहीं देना। तो इस बेसिस पे तो कोर्ट है वो प्लेंटिफ की बात सुनती है और प्लेंटिफ की बात सुन के ये फैसला सुनाती है। सो दैट इज वाई जो एक्स पार्टी डिक्री है दैट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा बीइंग इट इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। वेयर एज अगर सूट इज डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट, तो सूट डिसमिस इन डिफॉल्ट होता है तो वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं होता, तो वो रेस जुडिकाटा से बाहर नहीं होता। बट उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है ऑर्डर 9 रूल 9 की, वो ऑर्डर 9 रूल 9 से बाहर है, ना कि रेस जुडिकाटा के प्ली से। ऑलराइट, चलिए थैंक यू। तो ये क्या है, ब्रीफली एक रेस जुडिकाटा प्ली की डिस्कशन है। थैंक यू वेरी मच।